تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ بے حد کم ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اولاد کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج اگر ہم طائرانہ نظر دنیا کے لوگوں پر ڈالیں، ہمیں یہ بات بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس دنیا پر بسنے والے تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی دنیا پر زندگی گزارنے کے طور طریقے معلوم ہیں، دنیا پر کس طریقے سے ترقی کرنا ہے معلوم ہے، دنیا کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے وہ معلوم ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، سیاست کا کیا ماحول ہے وہ بھی اسے معلوم ہے، اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ کیا ہے وہ معلوم ہے، بزنس کس طریقے سے گروتھ کر رہا ہے یا لاس میں جا رہا ہے وہ اسے معلوم ہے، اسی طریقے سے فیشن کے دور میں فیشن کیا چاہ رہا ہے، فیشن کس طرف جا رہا ہے اسے معلوم ہے۔ دنیا کے تمام امور پر اگر ہم بات کریں تو دنیا کے اکثر فرد کو، دنیا کے اکثر لوگوں کو معلوم ہے، لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ اگر کہا جائے تو یہ برا نہ ہوگا کہ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم اللہ کون ہے، بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم اللہ کے حقوق کیا ہیں، بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے اللہ کے احکامات کیا ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ کے فرامین کیا ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے ہمارے اوپر کیا واجبات ہیں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے محمد رسول اللہ کی سنتیں کیا ہیں، لیکن ہاں دنیا کی تمام تر چیزوں پر ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے عام انسانوں کا ماحول ہے۔ اگر ایک ایسے گروہ پر تبصرہ کیا جائے جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جو اپنے آپ پر علامہ کا لیبل لگاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، قصے کہانیوں کی روشنی میں عوام کو گمراہ کرتا ہے، قرآن و حدیث سے دور رکھتا ہے، قرآن و حدیث کے غلط مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے پرفتن اور پراشر دور میں آج ہم سب کی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کے صحیح علم کو حاصل کیا جائے، قرآن و حدیث کے صحیح علم کی روشنی میں امت کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اگر ہم میں سے لوگ کھڑے نہ ہوئے، قرآن و حدیث کے علم کو ہم نے حاصل نہیں کیا تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ لوگ قرآن و حدیث سے بہت دور چلے جائیں گے، لوگ گمراہیت کے راستے پر ہوں گے، اپنے طریقے سے لوگ کیا ہے چیزوں کو حلال و حرام بنا لیں گے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی اونچی پگڑی باندھ کر، بڑی اونچی ٹوپیاں لگا کر کے اور بڑے اچھے سے بیک گراؤنڈ کو سجا کر کے ایک انسان بیٹھتا ہے سوشل میڈیا پر، وہ قرآن و حدیث کی باتیں نہیں کرتا، وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے سامنے ان کے طریقوں کی باتوں کو رکھ کر کے اپنے آپ کو علامہ کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مولوی کہلاتا ہے۔ آج ضرورت ہے ایسے پرفتن اور پراشوق دور میں قرآن و حدیث کے علم کی طرف آیا جائے، قرآن و حدیث کے صحیح علم کو حاصل کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری جائے، تب ہم جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کو حاصل کر لیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کون ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کر لیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا محمد رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں، اگر ہم قرآن و حدیث سے جڑ جائیں گے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کر لیں گے ہمیں معلوم ہو جائے گا محمد رسول اللہ کے فرمان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن و حدیث سے دور رہے، لوگ ہمارے جذبات سے کھیلیں گے، لوگ ہمارے مائنڈ سے کھیلیں گے، لوگ اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث ہمارے سامنے بیان کریں گے اور پھر ہمارے دین کو نیست و نابود کر کے وہ کیا ہے دنیا کے اندر پیسہ کمانے والے بن جائیں گے اور ہماری آخرت پھر برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آج کے دور میں
जरूरत है कि हम कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले कुरान से पूछते हैं, कुरान हमसे क्या कह रहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मुतालबा करता है? ए लोगों, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना इसलिए निहायत जरूरी है कि कुरान और हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत कराता है, अल्लाह की पहचान कराता है, अल्लाह के बारे में बतलाता है, अल्लाह की ताकत के बारे में बतलाता है, अल्लाह की पावर के बारे में बतलाता है, अल्लाह की कुदरत उसकी निशानियों के बारे में बतलाता है। कुरान ऐलान करता है, फ़अलम, जान लो, फ़अलम हासिल कर लो, फ़अलम इल्म ले आओ, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं है। कुरान की आयत इस बात का पैगाम देती है कि हमें अल्लाह को जानने से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का अंदाजा करने से पहले, अल्लाह पर ईमान लाने से पहले अल्लाह के बारे में जानना है। अल्लाह कौन है, अल्लाह की ताकत क्या है, उसका मकाम क्या है, उसके अहकामात क्या है, उसके अंदर उसका पावर क्या है, ये सारी चीजें हम जान लेंगे तब अल्लाह की जात पर ईमान लाएंगे। अगर हमें इल्म नहीं होगा, हम क्या है, दरख्तों के सामने सजदा करते नजर आएंगे। हमें अल्लाह के बारे में इल्म नहीं होगा, मुर्दों की हड्डियों के सामने नजर आएंगे। हमें अल्लाह के बारे में इल्म नहीं होगा, मूर्तियों के सामने, पत्थरों के सामने, जानवरों के सामने सजदा करते नजर आएंगे। अगर हमें अल्लाह के बारे में इल्म नहीं होगा, हम जिसके सामने चाहेंगे सर झुकाएंगे। लेकिन दुनिया के लोगों, अगर हमें इल्म हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा अल्लाह की जात कौन है, अल्लाह कितनी ताकतों वाला है, अल्लाह किन चीजों पर कादिर है, जब हमें अल्लाह के बारे में इल्म हो जाएगा, हम ऐलान करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बहक नहीं है। मालूम ये होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने से पहले लोगों को तालीम दे रहा है कि तुम पहले अल्लाह के बारे में जान लो, यानी इल्म हासिल कर लो, उसके बाद कलमा पढ़ लो। समझ में आती है बात? इसी तरीके से और आगे चले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है। हम सब दुनिया के अंदर इंसान हैं, हम सबको मालूम है हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना है। अगर हम अल्लाह की इबादत करने के लिए जाएं, हमें इल्म ना हो, हमें जानकारी ना हो, हमें पता हो हमारी इबादत का हमें कोई फायदा नहीं होगा। एक इंसान जिसको इल्म है, नमाज पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज में 4 रकात है, वो सवाब कमाएगा, वो सवाब पाएगा। एक इंसान आकर के नमाज पढ़ रहा, ज़ोहर की नमाज में कितनी रकात नमाज है उसे नहीं मालूम है, वो पढ़ता चला जाएगा, सवाब नहीं पा सकता है। इसलिए अल्लाह की इबादत करने से पहले, अल्लाह की बंदगी करने से पहले, अल्लाह का जिक्र करने से पहले इल्म हासिल करना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून, तुम अल्लाह को याद करो उस तरीके से जिस तरीके से उसने तुम्हें सिखलाया, इससे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। अल्लाह ने तुमसे मुतालबा किया है कि तुम इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तब जाकर के अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह के बारे में जानना है, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना है, तब जाकर के ईमान लाना है। फिर उसके बाद अगर हमारे ऊपर फरीज़ा आयद होता है कि हमें बंदगी करनी है, अल्लाह की इबादत करना है, इबादत के बारे में भी इल्म हासिल करना है। गरज ये कि दोनों आयत इस बात का पैगाम देती है, हम में से हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करे। और इसी तरीके से आगे चले, जो लोग इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत करते हैं लेकिन इबादत के बारे में इल्म नहीं है, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह की, बयान फरमाया, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। यही वो लोग हैं जो इबादत के अंदर जिंदगी गुजारते थे लेकिन किसी की सुनते नहीं थे, ये इबादत के अंदर जिंदगी गुजारते थे, ये अकल नहीं लगाया करते थे, ये इबादत के अंदर जिंदगी गुजारते थे, इनके पास इल्म नहीं था। आज इन्हें जहन्नम का ईंधन बनाया जा रहा है और ये अफसोस के साथ कह रहे, हाय अफसोस, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अगर हमने लोगों की बातों को सुन लिया होता, कुरान और हदीस को सुन लिया होता, समझ लिए होते कुरान और हदीस को, तो आज हम जहन्नम में से, जहन्नम वालों में से नहीं होते। इसी तरीके से हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बनाया, दुनिया का निजाम अपने तरीके से रवा दवा। ये सूरज चमकता था, आसमान कायम था, सूरज चमकता था, सितारे चमकते थे और फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, जिन्नात अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे और बुलबुलें चहक रही थी, फूल महक रहे थे, दुनिया का निजाम कायम था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, दुनिया के
के चलते हुए निजाम में इस इंसानों को क्यों बनाया गया, इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों पैदा किया। अल्लाह की इबादत तो फरिश्ते करते थे, जिन्नात जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को क्यों बनाया, आदम को क्यों पैदा किया। जब हम कुरान की स्टडी करते हैं मालूम होता है, ए दुनिया के लोगों, मालूम होता है जब सारा निजाम दुनिया का चल रहा है, आखिर ऐसा क्या मसला पेश आ गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को बनाया, तमाम तर मखलूकात पर फौकियत और अफजलियत देने का फैसला किया गया। हमें मालूम है, नहीं मालूम है? आओ जवाब कुरान की रोशनी में जानते हैं। वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। हमने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखलाए और कहा, ऐ आदम अगर हमने तुम्हें जो सिखलाया है, अगर तुम सच्चे हो तो लोगों के सामने नाम बयान करो। आदम ने नाम बयान कर दिए, फरिश्ते नहीं बयान कर सके, जिन्नात नहीं बयान कर सके। तीनों के दरमियान में फैसला होता है, आदम जीत जाते हैं। और वो लोग जिनके सामने मुकाबला रखा गया, जिन्नात और फरिश्तों के सामने कहने लगे, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह तेरी जात पाक है, हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है, मगर वही नॉलेज है, मगर वही जानकारी है, वही इल्म है जो तूने हमें सिखलाया है। अल्लाह की जात पाक है। आदम को मकाम दिया गया, अशरफुल मखलूकात का सर्टिफिकेट दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म सिखलाया था। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम में से हर एक शख्स को इल्म हासिल करने की जरूरत है। और इल्म कौन सा हासिल करना है? कुरान और हदीस का इल्म। आज अगर हम कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की मार्फत हमें मिल जाए। अगर आज हम कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन को जान लें, आपकी सुन्नतों का अंदाजा हो जाए, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन की रोशनी में अपनी जिंदगी को बसर करें और इस दुनिया से चले जाएं, कल क़यामत दुनिया से चले जाएं, कब्र में फरिश्तों से सामना हो, फरिश्तों के सवाल का जवाब दे जाएंगे। अगर दुनिया के अंदर हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अपने आप को कुरान और हदीस के इल्म से दूर रखें, रब्बे काबा की कसम, कब्र में जाने के बाद ऐसे डॉक्टर अफसोस करेंगे जो कुरान और हदीस से अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसे इंजीनियर, ऐसे ओहदेदार, ऐसे बिजनेसमैन अपने आप पर अफसोस करेंगे, ऐ काश मैंने गरीबी की जिंदगी गुजारी होती लेकिन कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर लेता। ऐ काश मैं एक मकतब का अदना तालिब इल्म बन जाता और कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर लेता। एक इंजीनियर अफसोस करेगा, एक डॉक्टर अफसोस करेगा। लेकिन अगर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद एक इंसान गरीबी की जिंदगी बसर करके गया, कब्र में फरिश्तों के सवाल में पास हो जाता है, फरिश्ते उससे जो पूछे उसमें पास हो जाता है, उसकी जिंदगी रायगा नहीं जाएगी, उसकी जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन अगर दुनिया के अंदर दुनिया के लालच में अमीरी की हवस लेकर के, ज्यादा मालो जर की हवस लेकर के दुनिया की जिंदगी गुजारते रहे, कुरान और हदीस का इल्म हासिल नहीं किया, अपने बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म नहीं सिखाया, खुद को कुरान और हदीस के इल्म से दूर रहे, कुरान और सुन्नत के इल्म से दूर रहे, अपने बच्चों को भी कुरान और हदीस के इल्म से दूर रखा, इसलिए कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद फ्यूचर नहीं है, इसलिए कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली, इसलिए कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद ये क्या कमाएगा, ये सोच करके तुमने अपने बच्चों को कुरान और हदीस से दूर रखा। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी जिंदगी का सौदा बहुत महंगा पड़ जाएगा। तुम फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे सकोगे अगर तुम खुद कुरान और हदीस से जोड़ करके अपनी नस्लों को कुरान और हदीस से जोड़ करके चले जाओगे। रब्बे काबा की कसम, दुनिया के अंदर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाला शख्स मरने के बाद कब्र के सवालात में पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहने का मतलब यह है कि कुरान और हदीस का इल्म हासिल करो। और मैं फिर ये कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, दुनिया के लोगों, जिस तरीके से ये सूरज की रोशनी रात की तारीकी बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से ये उजाला अंधेरा बराबर नहीं हो सकते, बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते, कमजोर और ताकतवर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरीके से सवाल दागता है, रब सवाल करता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी पूछिए इनसे सवाल कीजिए, क्या जानने वाला और न जानने वाला बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक ओहदेदार है, उसके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं है,
दुनियावी इल्म है, वो बड़ी डिग्रियां लेकर के जिंदगी गुजारता है, बड़ा अच्छा लिबास पहनता है, और आपकी नजरों में अहमियत आनी चाहिए। एक अदना सा तालिब इल्म, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने वाला, बिना प्रेस का लिबास पहन करके मुसल्ले पर खड़ा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, ओहदेदार उसके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं। कुरान और हदीस का इल्म इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कराइए। नबी का फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना, दीन का इल्म हासिल करना वाजिब है, फर्ज है। अकायद का इल्म होना चाहिए, अहकामात का इल्म होना चाहिए, वाजिबात का इल्म होना चाहिए। हर एक चीज का इल्म ना हो, कम से कम अकीदे के ताल्लुक से तो जानकारी हो। क्या चीज को माने तो अकीदा दुरुस्त रहे, किन चीजों से बचे तो अकीदा महफूज रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में अगर हम कुरान और हदीस से जुड़ेंगे, कुरान और हदीस पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तब जाकर के इल्म आएगा, तब जाकर के जानकारी आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु इल्मन नाफिया व तअव्वज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला युनफा। अल्लाह से सवाल करो इल्म नाफी का, अल्लाह से सवाल करो फायदा देने वाले इल्म का, और अल्लाह की पनाह तलब करो ऐसे इल्म से जो फायदा ना दे। दुनिया के लोगों में पूछता हूँ, एक इंसान दुनिया के अंदर बड़े ओहदे की डिग्री लेकर के जिंदगी गुजार कर चला गया, कब्र में सवाल का जवाब न दे सका, वो कामयाब है? नहीं कामयाब है। वो इल्म फायदा देने वाला है? नहीं फायदा देने वाला है। लेकिन अगर एक शख्स कुरान और हदीस के दायरे में रह करके उसने जो इल्म हासिल किया था, उसकी बुनियाद पर दुनिया और आखिरत के अंदर वो कामयाब हो जाता है, उसका इल्म फायदा देने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही तालीम दी थी, ए लोगों, इज़ा मातल इंसान इनकता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्म युंतफा बिह। ए लोगों, इंसान दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया को छोड़कर जाता है, मालो मता को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके अमाल करने का सिलसिला मुनक़ते। तीन चीज उसको मरने के बाद फायदा देती है। कौन सी है वो? उनमें से एक सदक़े जारिया है। कोई भी खैर का काम अल्लाह की रजा के लिए दुनिया के अंदर कर जाइए, मरने के बाद आपको फायदा पहुंचता रहेगा। और दूसरा क्या है? इल्म नाफे है, कुरान और हदीस का इल्म है। अगर आप कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के बाद किसी को पढ़ाकर चले जाते हैं, किसी को मसला बयान करके चले जाते हैं, किसी को दीन से जोड़ करके चले जाते हैं, आपके चले जाने के बाद जितने लोग आपकी बातों पर अमल करके जाएंगे, यानी आपने लोगों को नमाजी बनाया था, जितने लोग नमाज पढ़ते चले जाएंगे, मरने के बाद आपको सवाब पहुंचता रहेगा। जितने लोगों को आपने कुरान का कारी बनाया, कुरान का पढ़ने वाला बनाया, आपके मरने के बाद वो लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, आपको सवाब पहुंचता रहेगा। जितने लोगों को आप दीन की तालीम से जोड़कर चले जाएंगे, आपके मरने के बाद, आपके बाद जिन लोगों को आपने दीन की तालीम से जोड़ा था, वो दीन की तालीम हासिल करते रहेंगे, वो दीन पढ़ते रहेंगे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ते रहेंगे। आपके चले जाने के बाद भी आपको सवाब पहुंचता रहेगा। इसलिए मुसलमानों, जरूरत है आज कि हम कुरान और हदीस का इल्म हासिल करें। उसकी अहमियत है, उसकी फजीलत है, दुनिया के अंदर भी उसका फायदा है, मरने के बाद भी हमारे लिए वो फायदे का जरिया है, फायदे का बिजनेस है। इसलिए आज जरूरत है कि लोगों अपने बच्चों को कुरान और हदीस के इल्म से जोड़िए। यानी मदारिस की तालीम का इब्तिदाई साल है, तालीमी साल का आगाज हो रहा है। अगर आज हमें मालूम है कि हमारे बच्चे नाकारा है, हमारे बच्चे दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी हासिल करने वाले बने, उनको मदारिस की तालीम दिलाइए, उनको मदारिस के अंदर तालीम दिलवाइए। आपके बच्चे मदारिस की तालीम में जाने के बाद, मदारिस से तालीम हासिल करने के बाद आपका मकाम समझेंगे, अल्लाह का मकाम समझेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, रब के हुकूक की अदायगी करेंगे, बंदों के हुकूक की अदायगी करेंगे। अगर आपके बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा, दीन की तालीम का इल्म नहीं होगा, आपके बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, आपके बच्चे बाबूजी बन जाएंगे, आपके बच्चे क्या है बड़े ओहदों पर चले जाएंगे। लोगों सुनो, आपके कानों में बात डाल रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों से जब बात करेंगे, आपका बच्चा डॉक्टर, आपका बच्चा इंजीनियर, आपका बच्चा बड़ा ओहदेदार है, वालिदैन डरेंगे कि
کہ बाबूजी के मन के कोई खिलाफ बात नहीं हो जाए। बाबूजी अगर नाराज हो गए, डॉक्टर हमने बनाया, ये कमाई करेगा, पैसा हमें नहीं मिलेगा, इंजीनियर हमने बनाया, अगर ये नाराज हो गया पैसा हमें नहीं मिलेगा, हमने बड़े ओहदे पर पहुंचाया, अगर ये नाराज हो गया तो पैसा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन मदरसे की तालीम हासिल करने वाला एक शख्स, कुरान और हदीस की तालीम को सीखने वाला एक शख्स जो अपने वालिदैन से बात करेगा, अपने वालिदैन का सामना करेगा, डरेगा कहीं मेरी जुबान से अल्फाज ना अदा हो कि मेरा बाप नाराज हो जाए। सोचने की बात है, समझने की बात है। अगर ये जुमला लेकर के जाते हैं आप, बिल यकीन आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और कुरान और हदीस की तालीम दिलाना क्यों जरूरी है? 3 सवालों के जवाब आपके सामने रखना। इस सवाल का जवाब 3 तरीके से रख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर नबी बनाया। सबसे पहली वही अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल करता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इंसानों को, जिसने दुनिया की तमाम चीजों को पैदा किया। सबसे पहला हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में नाजिल होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जिस उम्मत के लोगों को इक़रा की तालीम सबसे पहले दी गई हो, आज वही उम्मत तालीम और तरक्की में सबसे पीछे रह जाती है। समझने की बात है ये, सोचने की बात है ये। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ताल्लुक से मिलता है, वक़द तअल्लम असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन किब्रि फी सिन्निहिम। ऐ लोगों, आज हम अपनी उम्र पर, अपने ओहदे पर, अपने बिजनेस और कारोबार को लेकर के, अपनी तरक्की को लेकर के शर्माते हैं। हम क्या जाएंगे इस उम्र में कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए? वो सहाबा जिन्हें जन्नती होने की बशारतें दी गई, नबी के नाम पर जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, माल की कुर्बानियां दी, उन सहाबा की तालीम, उन सहाबा के तर्ज अमल को उठाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया करते थे। है कि उमर फारूक का कौल उठाइए, ऐ लोगों, तफक्कहू क़ब्ल अन तुसफ़िदू। तुम्हें सरदारी दी जाने से पहले दीन का तुम इल्म हासिल करो, यानी दीन की समझ हासिल करो। जब इंसानों के पास दीन का इल्म हो जाएगा, जब उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हो जाएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहकामात उसकी नजरों में आ जाएंगे, सुन्नत आ जाएगी, वो जब सरदार बनेगा, वो जब ओहदे पर जाएगा, वो जब डॉक्टर बनेगा, वो जब इंजीनियर बनेगा, लोगों के हक नहीं मारेगा, वो लोगों के हक नहीं मारेगा। जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जान जाएगा, उसे इल्म होगा। आज मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी पर बेजा जुल्म कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे ऊपर है। मैं इंजीनियर हूं, गलत नक्शे बना करके लोगों से पैसा ऐंठ रहा हूं। मैं मुसलमान होकर के जब मुझे कुरान और हदीस का इल्म होगा, मुझे मालूम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी पकड़ कर लेगा। मैं बड़े ओहदे पर बैठकर जब मेरे पास कुरान और हदीस का इल्म होगा, मुझे डर होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे ऊपर है, वो मेरी पकड़ कर लेगा। इसलिए है कि उमर फारूक के इस कौल पर भी हमें नजरसानी करनी है, हमें अमल करना है कि उन्होंने कहा था, लोगों तफक्कहू क़ब्ल अन तुसफ़िदू। उस दिन से पहले जिस दिन तुम्हें सरदारी दी जाए, तुम्हें ओहदा दिया जाए, तुम्हें बड़ा बनाया जाए, उससे पहले तुम दीन की समझ हासिल करो। और दीन का इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि आज फितनों का दौर है, आज इर्तिदाद का दौर है, आज कुफ्र और कुफ्रिया लोगों के फितने हैं, आज बेहयाई के फितने हैं, आज बदअमालियों के फितने हैं, आज इर्तिदाद का दौर है, आज शिर्क और कुफ्र के फितने हैं, आज औरतों के फितने हैं, सोशल मीडिया के फितने हैं। आज इन तमाम फितनों से निपटने के लिए एक इंसान को जरूरी है कि वो कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे। अगर कुरान और हदीस का इल्म होगा, दुनिया के तमाम तर फितनों से वो अपने आप को महफूज कर लेगा। अगर उसके पास कुरान और हदीस का इल्म नहीं होगा, दुनिया के हर फितनों से वो क्या है, दो चार हो जाएगा। कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर हम कुरान और हदीस को छोड़ करके दुनिया की सारी चीजों का इल्म हासिल कर लेंगे, अल्लाह की नजरों में हम बेहतर नहीं बन सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ल आलिमिन बिद्दुन्या व जाहिलिन बिल आखिरा
ایک ڈاکٹر ہو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو, ایک انجینئر ہو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو, بڑے عہدے پر فائز ہو قرآن و حدیث کا علم نہ ہو, اور اس کے برعکس ایک ادنا سا طالب علم ہو, ایک فقیر ہو, ایک لاچار ہو, ایک مجبور ہو, لیکن قرآن و حدیث کا علم ہو, ان دونوں میں اللہ کی نظروں میں وہ بہتر ہے. اللہ اسے پسند فرماتا ہے جو آخرت کے معاملے کے بارے میں جانتا ہے, جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, جو آخرت سے واقف ہے. اللہ ہر شخص کو ناپسند فرماتا ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, یعنی جو صرف دنیاوی امور کے بارے میں جانتا ہے اور آخری امور کو اخروی امور کو بھلا کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تمام تر چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آج اگر ہم دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے, اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے کے لیے, اپنی اولاد کی صحیح زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے, ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنے کے لیے اگر یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں تو ہم خود اور اپنی نسلوں کو, اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے علم سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے, بعدہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے اور اس کی روشنی میں دوسرے لوگوں کو رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو اللہ رب العالمین صحیح راستے پر لگا دے. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت فرمانا. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا بنانا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دینا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہیں, اے اللہ ظالم حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں یا ظالم لوگ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, اے اللہ ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما, ورنہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے اور مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, پریشان ہیں, لاچار ہیں, اللہ ان کی بیماریوں کو, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو موحدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ رمضان کے گزشتہ مہینے میں ہم نے تیری جتنی بھی عبادتیں کی تھی, اے اللہ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. اے اللہ ہماری بھول چوک کو, ہماری غلطیوں کو اور نافرمانیوں کو اللہ معاف فرما دینا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھنا توحید پر اور خاتمہ بالخیر فرمانا.